اسرائیل نے ظلم و بربریت اور دہشت گردی کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے الجزیرہ کے ان 5 صحافیوں کو شہید کر دیا ہے، اور اسرائیل اب یہ چاہتا ہے کہ غزہ پٹی میں وہ جو جنوسائیڈ کر رہا ہے، جو قتل عام کر رہا ہے، اس کی سچائی پوری دنیا کو نہ مل سکے۔ الجزیرہ دنیا کا واحد انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس ہے جس کے رپورٹرز گراؤنڈ پر غزہ پٹی میں موجود ہیں، اور لگاتار شہادتوں کے باوجود الجزیرہ کے صحافی گراؤنڈ سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، اور یہ آخری 5 صحافی الجزیرہ کے غزہ پٹی میں موجود تھے جن کو ایئر اسٹرائک کر کے اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اہم ہے محمد انس کی 28 سال ایج ہے، اور انہوں نے غزہ پٹی کے زیادہ تر علاقوں سے گراؤنڈ رپورٹنگ کی ہے، اور اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے ایک جذباتی پیغام لکھا جس کو ان کی شہادت کے فوراً بعد نشر کیا گیا، اور وہ پیغام بہت اہم ہے جو فلسطین کے نام ہے، فلسطینی قوم کے نام ہے، اور دنیا بھر کی غیرت مند قوم کے نام ہے، اس لیے وہ بیان بھی آپ کو سننا چاہیے، اور آگے میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے دیکھیے کہ BBC دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے، CNN مانا جاتا ہے، واشنگٹن پوسٹ مانا جاتا ہے، نیو یارک ٹائمز مانا جاتا ہے، فوکس نیوز مانا جاتا ہے، دی گارڈین مانا جاتا ہے، یا گلومبرگ TV ہے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی رپورٹر غزہ پٹی میں گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے، بلکہ ان تمام کے رپورٹرز اسرائیل میں موجود ہے، اور اسرائیل کی آرمی چیف IDF کی طرف سے جو بریفنگ دی جاتی ہے اس کے مطابق دنیا کے تمام میڈیا ہاؤسز رپورٹ شائع کرتے ہیں۔ الجزیرہ واحد چینل ہے جو غزہ پٹی میں موجود رہ کر گراؤنڈ رپورٹ کرتا ہے اور سچائی بتاتا ہے کہ کس طرح اسرائیل چن چن کر عام فلسطینیوں کو مارتا ہے، وہ ہسپتالوں پر حملہ کرتا ہے، وہ چرچ پر، مسجد پر، عام سویلینز کو نشانہ بناتا ہے، اور الجزیرہ نے جس طرح گراؤنڈ زیرو سے سچائی پوری دنیا کو بتایا، بچوں کو مارنے کی خبر، عورتوں کو مارنے کی خبر، عام سویلینز کو مارنے کی خبر، یا مدد لینے کی لائن میں جو لوگ لگے تھے ان پر حملہ کرنے کی خبر، تو یورپ کا ایک طرح سے مزاج بدلا۔ وہ تمام ممالک جو اسرائیل کے ساتھ تھے، فلسطین کے خلاف تھے، ان سب نے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ ابھی ایک بڑی خبر یہ آئی کہ آسٹریلیا نے بھی فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ الجزیرہ کی جو سچائی ہے اسرائیل کو برداشت نہیں ہو سکی۔ اسرائیل نے پہلے الجزیرہ پر اسرائیل میں پابندی لگائی، ویسٹ بینک میں پابندی لگائی، اور غزہ پٹی میں چن چن کر الجزیرہ کے صحافی کو اسرائیل نے شہید کر دیا، اور اب یہ آخری 5 صحافی کو بھی اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، اور اس طرح غزہ پٹی میں اب تک 237 صحافیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ یہ 5 صحافی کون ہیں؟ پہلے ان کے ناموں کو جانیے۔ 5 جرنلسٹ آف الجزیرہ جو آج 10 اگست کو سنڈے کی رات میں، کہہ لیجئے 11 اگست کی صبح ہو چکی، شہید کیے گئے، تو ان میں پہلا نام ہے انس الشریف کا جو الجزیرہ کے سینئر کورسپونڈنٹ تھے، اس کے بعد محمد قرقے کا جو الجزیرہ کے سینئر صحافی، اس کے بعد کیمرہ مین ہیں ابراہیم ظہیر، محمد نوفل اور مومن علیوہ۔ تو یہ 5 ہیں جن میں سے 3 کیمرہ مین اور 2 سینئر صحافی رپورٹر، ان 5 کو اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کر کے شہید کر دیا ہے، اور اس حملے پر دنیا بھر میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، پوری دنیا سے مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے ایک تو 5 صحافیوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد اسرائیل دوسری دلیل یہ دے رہا ہے اس حملہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ انس کا تعلق، الجزیرہ کے صحافی کا تعلق حماس سے تھا، اور حماس کی ایک یونٹ کو وہ لیڈ کر رہا تھا، اور اس لیے دہشت گرد کی یا ملیٹنسی کی کیٹیگری میں اسرائیل نے اس کو قتل کیا ہے، اس پر حملہ کیا، جبکہ اسرائیل کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اسرائیل کے پاس اس کا کوئی پروف نہیں کہ محمد انس کا تعلق حماس کی کسی یونٹ سے تھا یا ملیٹنسی سے اس کا کوئی تعلق تھا، بلکہ محمد انس ایک جرنلسٹ کے طور پر، ایک صحافی کے طور پر لگاتار اس پورے معاملہ کو لیڈ کر رہے تھے۔ خود محمد انس کے والد کی شہادت بھی اسرائیل کے حملے میں پہلی ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے پہلے انس کے والد کو، ان کی فیملی ممبر کو شہید کیا کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے، دب جائے، لیکن انس لگاتار میدان میں ڈٹے رہے، اور اب انس کو بھی اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ اور اسرائیل نے جو یہ دعویٰ کیا کہ انس کا تعلق ملیٹنٹ گروپ سے تھا، اس کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ CPJ جو دنیا کی سب سے بڑی ایک طرح سے آرگنائزیشن مانی جاتی ہے صحافیوں کی، یعنی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، اس نے باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ اسرائیل کا یہ جو دعویٰ ہے صحافی کو شہید کر کے کہ اس کا ملیٹنٹ سے تعلق تھا، سراسر جھوٹا ہے۔ اسرائیل کو پروف پیش کرنا چاہیے، اور
सी पे जी ने इसकी मजम्मत की है। बयान सामने आया है, इजराइल्स पैटर्न ऑफ लेबलिंग जर्नलिस्ट्स एज मिलिटेंट्स विदाउट प्रोवाइडिंग क्रेडिबल एविडेंस रेजेज सीरियस क्वेश्चन अबाउट इट्स इंटेंट एंड रेस्पेक्ट्स for press freedom. Journalists are civilians and must never be targeted. Those responsible for these killings must be held accountable. तो CPJ ने बाज़ाब्ता बयान जारी करके इसराइल के इस हमले की शदीद मजम्मत की और कहा इसराइल का ये जो दावा है कि अनस का ताल्लुक मिलिटेंसी से था, सरासर झूठ है। इसराइल ने कोई भी प्रूफ पेश नहीं किया है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस पर हमला है और इसराइल का इससे मुहासबा होना चाहिए। उसके अलावा इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है कोगिटो मीडिया फाउंडेशन, जो ज़्यादातर डिजिटल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोगिटो मीडिया फाउंडेशन ने भी इसराइल के इस हमले की शदीद मजम्मत की है, बयान जारी करके कहा कि ये जो हमला है इंटरनेशनल लॉ की और प्रेस फ्रीडम की मुखालफत है। उसके अलावा जिन सहाफ़ियों की शहादत हुई है और अल जज़ीरा के साथ मुकम्मल तौर पर सोलिडेरिटी है, यकजहती है और इंडिपेंडेंस ट्रांसपेरेंस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों मारा गया सहाफ़ियों को और इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। उसके अलावा कोगिटो मीडिया फाउंडेशन ने पिछले साल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जो एहतजाजी प्रोग्राम था, जिसमें इसराइल के ज़रिए हमले में मारे गए फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया था और उस वक्त भी मजबूत आवाज़ इंडिया से कोगिटो मीडिया फाउंडेशन ने उठाई थी। और अब आप ये बयान देखिए मोहम्मद अनस का, जो बहुत ज़्यादा अहम है कि उन्होंने अपनी मौत से, अपनी शहादत से कबल ये बयान लिखा था और उनको अंदाज़ा हो गया था। दरअसल इसराइल की काबीना ने, इसराइल की पार्लियामेंट ने कल ही फैसला किया गज़ा पट्टी का पूरा कंट्रोल हासिल करना है, गज़ा पट्टी के चप्पे चप्पे पर हमला करना है। होस्टेज मारे जाए या जिंदा बचे उसकी कोई परवाह नहीं करनी है, आम सहाफ़ी मारे जाए नहीं उसकी कोई परवाह करनी है। और जैसे इसराइल ने अपने इस हमले का आगाज़ किया गज़ा पर फुल कंट्रोल हासिल करने का, अनस ने लगातार उसकी रिपोर्टिंग की, पूरी दुनिया देख रही थी इसराइल की बर्बरियत को। खुद जो इसराइली अवाम है, जो इसराइल में रहती है या जो यहूदी इसराइली शहरी है, वो दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, या जो होस्टेज की फैमिलीज़ है, उन सब ने देखा कि किस तरह इसराइल जेनोसाइड कर रहा है और इसराइल में बगावत की आग और भड़कने लगी। हंगर स्ट्राइक शुरू हो चुका है इसराइल में, जिसका तस्करा मैंने कल एक वीडियो में किया था। तो खुद इसराइली अवाम इस फैसले के ख़िलाफ़ है। इसराइल के अवाम, वहाँ का आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर सब ये चाहता है कि हुकूमत डील करे हमास के साथ, जंग आगे ना बढ़े, लेकिन बिंजामिन नेतन्याहू जंगी जुनून में मुब्तला है। चुनांचे अनस की रिपोर्टिंग से घबरा गया था इसराइल और मोहम्मद अनस ने पहले अपना एक बयान लिखा था, हाज़िही वसीयती व रिसालतिल अखीरा इन वसलतकुम कलिमाती हाज़िही फ़अलमू अन्न इज़राइल क़द नजत फ़ी क़त्ली व इस्काती सौती, कि ये मेरी वसीयत है और मेरा आखिरी पैगाम है। अगर मेरे ये कलिमात आप तक पहुँचते हैं तो आप के इल्म में बात हो जानी चाहिए कि इसराइल मेरे कत्ल में और मेरी आवाज़ को खामोश करने में कामयाब हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम से आगाज़ है, यालमुल्लाहु अन्ननी बज़लतु कुल्ल मा अमलक मिन जुहदिही व क़ुव्वत मिन जुहदिन व क़ुव्वतिन, कि अल्लाह जानता है कि मैंने पूरी कोशिश की जुहद व क़ुव्वत की आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाने की। ये अरबी में है, मैं इसका तर्जमा उर्दू में पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे और स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। ये मेरा वसीयतनामा और मेरा आखिरी पैगाम है। अगर ये अल्फाज आप तक पहुंच गए हैं तो जान लीजिए कि इसराइल मुझे शहीद करने और मेरी आवाज़ को खामोश करने में कामयाब हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी कौम का सहारा और उसकी आवाज़ बनने के लिए अपनी हर कोशिश और सारी ताकत लगा दी। जब से मैंने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप की गलियों और कोचों में आँख खोली, मेरी उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने घर वालों और प्यारों के साथ अपनी असल बस्ती मकबूजा अस्कलान लौट सकूं, मगर अल्लाह की मशीयत पहले आ गई और उसका फ़ैसला अटल है। मैंने ज़िंदगी के हर कर्ब को जिया, बारहा तकलीफ़ और नुकसान का जायका चखा, लेकिन कभी एक लम्हे के लिए भी सच को सच्चाई के साथ बयान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की, न उसमें तहरीफ की, न झूठ मिलाया, ताकि अल्लाह उन लोगों पर हुज्जत कायम करे जो खामोश रहे, जिन्होंने हमारे कत्ल को कबूल किया, जिन्होंने हमारी सांसें रोक दी और जिनके दिल हमारे बच्चों और औरतों के बिखरे जिस्म देख कर भी न पसीजे, और उन्होंने इस कत्लेआम को रोकने के लिए कुछ न किया जो हमारी कौम 1 साल से ज़्यादा अरसे से सह रही है।
मैं आपके सुपुर्द करता हूँ फ़लस्तीन को, जो मुस्लिम दुनिया का ताज है, दुनिया के हर आज़ाद इंसान की धड़कन है। मैं आपके सुपुर्द करता हूँ उसके लोगों को, उसके मज़लूम और बेगुनाह बच्चों को, जिन्हें ख्वाब देखने या सुकून व अमन में जीने का वक्त ही न मिला, जिनके मासूम इसराइली बमों और मिसाइलों के हज़ारों टन बोझ तले कुचले गए, टुकड़े टुकड़े होकर दीवारों पर बिखर गए। मैं आपको वसीयत करता हूँ कि जंजीरें आपकी आवाज़ को खामोश न करे, न सरहदें आपके कदम को रोके। आप ज़मीन और उसके लोगों की आज़ादी के लिए पुल बने, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे लौटे हुए वतन पर तुलू हो। मैं आपके सुपुर्द करता हूँ अपने अहले खाना को, मैं आपके सुपुर्द करता हूँ अपनी प्यारी बेटी शाम को, मेरी आँखों की ठंडक जिसे मैं वैसा बड़ा होता ना देख सका जैसा ख्वाब में मैंने देखा था। मैं आपके सुपुर्द करता हूँ अपने बेटे सलाह को, जिसे सहारा देना और ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलना चाहता था, यहाँ तक कि वो मजबूत होकर मेरा बोझ उठा सके और मेरा मिशन जारी रख सके। मैं आपके सुपुर्द करता हूँ अपनी प्यारी माँ को, जिनकी मुबारक दुआओं ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया, जिनकी दुआएं मेरा किला थी और जिनके नूर ने मेरी रहनुमाई की। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें ताकत दे और मेरी तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं आपके सुपुर्द करता हूँ अपनी उम्र भर की साथी, अपनी प्यारी बीवी उम्मे सलाह को, जिनसे जंग ने मुझे कई लंबे दिन और महीने जुदा रखा, लेकिन वह हमारे रिश्ते पर वफ़ादार रही, जैतून के दरख्त के तने की तरह साबित कदम रही, सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा और मेरी गैर मौजूदगी में ज़िम्मेदारी को पूरी ताकत और ईमान के साथ निभाया। मैं आपको वसीयत करता हूँ कि उनका सहारा बने, अल्लाह के बाद उनका सहारा और आप मददगार हों। अगर मैं मरूँ तो अपने उसूलों पर कायम होकर मरूँगा। मैं अल्लाह के सामने गवाही देता हूँ कि मैं उसके फ़ैसले पर राज़ी हूँ, उससे मुलाकात का यकीन रखता हूँ और मुतमईन हूँ कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा बाक़ी रहने वाला है। या अल्लाह, मुझे शुहदा में शामिल फरमा, मेरे गुज़िश्ता और आइंदा गुनाह को माफ़ फरमा और मेरे खून को मेरी कौम और ख़ानदान के लिए आज़ादी का चिराग बना दे। अगर मैंने कमी की हो तो मुझे माफ़ फरमा और मेरे लिए रहमत की दुआ कीजिए, क्योंकि मैंने अपना वादा निभाया और कभी ना बदला, न मैंने धोखा दिया। गज़ा को मत भूलना और मुझे अपनी मुखलिस दुआओं में याद रखना। अनस जमाल अशरीफ 6/4/2025। तो ये अनस जमाल का आखिरी बयान है जो आज उनकी शहादत के बाद उनके ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया और उसके नीचे लाइन लिखी गई। ये वो पैगाम है जिसे हमारे प्यारे अनस ने अपनी शहादत के बाद शाये करने की वसीयत की थी। यानी अपनी शहादत से कुछ दिन पहले ही अनस ने बयान लिखा था और आज उसे शाये किया गया। बड़ा दर्दनाक बयान है और देखिए उनके जज्बा को, अपनी कौम के लिए उनकी मोहब्बत को, फ़लस्तीन के लिए उनकी तड़प को। काश मुस्लिम दुनिया का ज़मीर जाग जाए, उनकी गैरत जाग जाए और उनको एहसास हो कि किस तरह एक एक करके फ़लस्तीनी क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए अरबों की गैरत को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन ये अरब हैं जो सोए हुए हैं। और ये जो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये मोहम्मद अनस के वालिद है। मैंने अनस का ट्विटर हैंडल चेक किया तो अनस ने इस पोस्ट को पिन कर रखा था सबसे पहले, क्योंकि ये अनस के वालिद हैं। अनस ने लिखा, इस्तिशाद वालिदी अल हबीब अलहाज जमाल अशरीफ अबू शादी फ़ी क़स्फ़ी व तदमीर मंजिलना अल यौम फ़ी मखमिना जबालिया व युअद्दी सलात अल असर अत्ताज़िया मुस्तमर्रा। तो इन्होंने लिखा कि इनके जो वालिद हैं उनकी भी शहादत दिसंबर 11, 2023 को हो गई थी इसराइल के हमले में जबालिया में। खुद अनस ने बताया कि ये अस्कलान के रहने वाले थे जो इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में हैं। इनका ख्वाब था कि शायद फ़लस्तीन आज़ाद हो, यहूदी वापस लौटें और अपने वतन को लौट सके, लेकिन ये वो दिन देख नहीं सके। लेकिन उम्मीद है कि जल्द इनका वतन एक न एक दिन आज़ाद होगा। और अब ज़रा आप ये डेटा देखिए, कब तक इसराइल के हमले में गज़ा में कुल कितने सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं और अलग अलग डेटा है। तो CPJ के मुताबिक जून 2025 तक 178 सहाफ़ियों की शहादत हुई है फ़लस्तीन में, जिसमें से 176 फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं और 2 इज़राइली हैं।
IFJ की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून 2025 तक 174 सहाफ़ियों की शहादत हुई है। 170 फ़लस्तीनी हैं, 4 इजरायली हैं। गज़ा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक जुलाई 2025 तक 217 सहाफ़ियों की शहादत हुई है। अल जज़ीरा ने अभी तक जो डेटा जमा किया है तो उसमें अप्रैल 2025 तक 232 सहाफ़ियों की शहादत हुई है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 176 से ज़्यादा सहाफ़ियों की शहादत हुई है। और कुद्स न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 237 सहाफ़ियों की गज़ा पट्टी में अब तक शहादत हो चुकी है। और ये डेटा है जो आप तफसील से समझे कि कैसे मंथ अक्टूबर 2023 में तकरीबन 15-20 सहाफ़ियों की शहादत हुई। नवंबर आते आते 50 से ज़्यादा सहाफ़ियों की शहादत हो जाती है। दिसंबर 2023 तक ये जो तादाद है तकरीबन 100 के करीब पहुँच जाती है। और जनवरी 2024 में तादाद 100 से ज़्यादा बढ़ गई। तो अब देखिए हर ये नीचे महीना है, ऊपर फिगर है कि नंबर लगातार सहाफ़ियों की शहादत की जो तादाद है बढ़ती जा रही है। और आज की जो फाइनल रिपोर्ट है यानी जुलाई कह लीजिए आज 10 अगस्त है तो 11 अगस्त 2025 तक जो सहाफ़ियों की शहादत हुई है गज़ा पट्टी में वो फिगर 237 तक पहुंच गया है। और पूरी दुनिया की जंग में यानी दुनिया में अब तक बेशुमार जंगें हुई है, लड़ाई हुई है और जो भी डेटा अवेलेबल है या कह लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो जंगें हुई है सहाफ़ियों ने उसको कवर किया तो सबसे ज़्यादा सबसे कम वक्त में जो शहादत हुई है सहाफ़ियों की वो गज़ा वार ही है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा शहादत अल जज़ीरा के सहाफ़ियों की हुई है। ये डेटा मौजूद आप देखिए वर्ल्ड वार 2 में 69 यानी 69 सहाफ़ियों की शहादत हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड जो वियतनाम की जंग है उसमें 63 सहाफ़ियों की शहादत हुई। शुमालिया वार में 73 सहाफ़ियों की शहादत हुई। बोस्निया में जो 1994 में जंग हुई थी 2 सहाफ़ियों की शहादत हुई। अफ़गानिस्तान वार यानी अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान पर 2001 में हमला किया और 2021 तक जंग जारी रही, इसमें तकरीबन 20 साल की इस लड़ाई में 118 सहाफ़ियों की शहादत होती है। इराक़ वार 2003 से 2011 तक जारी रही और इसमें 282 सहाफ़ियों की शहादत होती है। सीरिया का जो सिविल वार है 2011 में शुरू हुआ 2025 तक जारी रहा, इसमें 300 सहाफ़ियों की शहादत हुई। यूक्रेन में जो जंग चल रही है 2014 से ही रूस से इख्तलाफ है लेकिन 2022 से शदीद लड़ाई चल रही है तो उसमें अब तक सिर्फ 70 सहाफ़ियों की शहादत हुई है। यमन में जो सिविल वार अब तक जारी एक तरह से 50 सहाफ़ियों की शहादत हुई। लेकिन गाज़ा में सिर्फ 23 महीने में अक्टूबर 2023 से 2025 तक 237 सहाफ़ियों की शहादत हो चुकी है। और किसी भी लड़ाई में सहाफ़ियों की शहादत की सबसे बड़ी तादाद है। और अफसोस की बात यह है कि सहाफ़ियों का कत्ल संगीन जुर्म है, यूनाइटेड नेशन के रूल के ख़िलाफ़ है, जिनेवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के ख़िलाफ़ है। इसके बावजूद मजबूती के साथ आवाज़ तक नहीं उठती और इसराइल इसको जस्टिफाई करता है और पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। इसके बावजूद फ़लस्तीन के सहाफ़ियों को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम कि लगातार वो ग्राउंड पर मौजूद रहकर सच्चाई वहाँ से पूरी दुनिया को पहुँचाते हैं। और हकीकत पर मबनी ख़बरें उन्हीं लोगों की वजह से हम आप तक पहुंचा पाते हैं जिसमें सबसे बड़ा किरदार अल जज़ीरा का है, फिर कुद्स न्यूज़ नेटवर्क का है, शबकतुल कुद्स का है, मिडिल ईस्ट आई का है या वहाँ के कुछ दूसरे मीडिया हाउसेज हैं। और अगर आपसे गुजारिश है कि अगर आप इंडिया में मजबूत मीडिया हाउस चाहते हैं, ऐसी आवाज़ चाहते हैं जो सरकार की तर्जमान ना हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तर्जमान ना हो बल्कि हकीकत पर मबनी ख़बरें दिखा सके, ख़ुद फ़लस्तीन की ख़बरें दिखाने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, तो प्लीज़ आप मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे मेंबर्स बनिए। और मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लेने का तरीका यह है कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद गूगल में जा करके इस QR कोड को स्कैन कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा उस पर क्लिक कीजिए तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि मेंबरशिप का प्लान मौजूद है। 99 रुपये का प्लान है, 500 का प्लान है, उसके नीचे 200 का प्लान है। तो कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए, आप चाहें तो 500 रुपये का प्लान ले लीजिए, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो 99 रुपये का प्लान ले लीजिए। और ये प्लान तो आप ले ही सकते हैं। अगर 99 रुपये का प्लान भी आप नहीं ले सकते किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए तो मुझे लगता है कि फिर आप उम्मत से कैसी हमदर्दी रखते हैं। और मैं YouTube चैनल चलाने के लिए नहीं ले रहा हूं बल्कि वेबसाइट को रन करने के लिए, दूसरे कामों के लिए, क्योंकि एक जो कोई काम होता है तो उसके पीछे 10-15 लोगों की टीम होती है। तो प्लीज़ आप 99 रुपये का प्लान ले लीजिए और इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद सब्सक्राइब नाउ पर आपको आना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ आपको ईमेल ID डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, अपना नाम लिखना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये पेज खुलेगा, यहाँ UPI ID या कार्ड, तो UPI ID आप डालिए या
जो मोबाइल नंबर आपका फ़ोन नंबर UPI ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से लिंक है, उसको आप यहाँ ऐड कर दीजिए इस पर क्लिक करने के बाद। और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करिए। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे उस ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस टाइप का, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा और यहाँ आपको अप्रूव ऑटो पे पर क्लिक कर देना है, या फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, या पेटीएम है तो भी वहाँ भी नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ भी पे पर क्लिक करना है, और इस तरह आपकी मेंबरशिप पूरी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है मेंबरशिप लेने में, सब्सक्रिप्शन लेने में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मिलर टाइम्स का फ़ोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ 7982679313। तो ये 7982679313 मिलर टाइम्स का ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी मेंबरशिप लेने में, सब्सक्रिप्शन हासिल करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लें। अल्लाह हाफिज़।